الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار رواہ مسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم اس ویڈیو کے اندر آپ حضرات کو درس حدیث کی دوسری قسط آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے، اور جیسا کہ پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب معارف الحدیث سے احادیث کا انتخاب کر کے روزانہ ایک حدیث ایک ویڈیو کے ذریعے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے، اور اس کا مختصر ترجمہ اور مختصر تشریح جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے، تاکہ آپ حضرات حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے واقف ہو سکیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کو سن سکیں، سمجھ سکیں اور ان کو یاد رکھ سکیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کی احادیث پر، آپ کے فرامین پر عمل کر کے اللہ رب العزت کی رحمتوں کے مستحق بن جائیں، اور قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق بنیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور آپ کی احادیث مبارکہ کو صحیح انداز میں اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق صحیح تشریح کے ساتھ، صحیح ترجمے کے ساتھ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو حدیث اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث کے راوی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جلیل القدر صحابہ میں سے ایک ہیں، اور ان سے بہت سی روایات مروی ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من شہد ان لا الہ الا اللہ، جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وان محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، حرم اللہ علیہ النار، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ یعنی اس حدیث کے اندر دین اسلام کا جو بنیادی کلمہ ہے اس کی فضیلت اور اہمیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کیونکہ دین اسلام کی بنیاد توحید کے اوپر اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار پر ہے۔ اگرچہ اس کے علاوہ بھی دوسرے عقائد ہیں جن کا ذکر ہم انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز کے اندر کریں گے، لیکن دین اسلام کا سب سے اہم عقیدہ جس کے ذریعے سے کوئی مسلمان دین اسلام میں داخل ہوتا ہے، کوئی شخص مسلمان کہلانے کے لائق ہوتا ہے، وہ کلمہ توحید ہے، اور وہ دو طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور دوسرا جس کو کلمہ شہادت بھی عرف عام میں کہا جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی اس کلمہ توحید کے ذریعے کوئی بھی شخص دین اسلام میں داخل ہوتا ہے، کوئی بھی شخص مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ حاصل کرتا ہے، کوئی بھی شخص مسلمان ہونے کا اعزاز حاصل کرتا ہے، اور مسلمان کہلانے کا حقدار بنتا ہے۔ تو کلمہ توحید کی دین اسلام کے اندر بنیادی اہمیت ہے، اس کو ہر مسلمان بنیادی طور پر جانتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید کے بارے میں ایک حدیث کے اندر فرمایا
کہ जन्नत की कुंजी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है। यानी जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, गोया कि उसके हाथ में जन्नत की कुंजी आ गई, जन्नत की चाबी आ गई, कि अब उसके पास जन्नत के ताले की चाबी मौजूद है और वो जन्नत में दाखिल होने का मुस्तहिक बन चुका है। तो कलमा तौहीद की वजह से एक शख्स कुफर से इस्लाम में दाखिल होने के बाद इस लायक हो जाता है कि कम अज कम उस लिस्ट के अंदर, उस फहरिस्त के अंदर शामिल हो सके कि जिनकी अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन बख्शिश फरमा देंगे। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर सूरह निसा में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह ताला इस ऐसे आदमी की बख्शिश नहीं करेंगे जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराए, और उसके सिवा अल्लाह ताला जिसकी चाहेंगे बख्शिश फरमा देंगे। और अहादीस के अंदर आता है कि जिस शख्स ने दिल से एक दफा भी कलमा पढ़ा होगा तो आखिरकार वो जन्नत में जरूर जाएगा, अगरचे उसके गुनाहों की वजह से उसको एक दफा जहन्नम में दाखिल किया जाए, लेकिन अपने गुनाहों की सजा भुगतने के बाद आखिरकार वो जन्नत का मुस्तहिक बनेगा, जन्नत में जाएगा। हदीस के अंदर आता है कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत पहले तमाम मुसलमानों को जन्नत के अंदर दाखिल कर देंगे। यानी जो लोग जन्नत में जाने के मुस्तहिक होंगे, जिनका नामा अमाल में उनके नेकियों का पलड़ा भारी होगा और गुनाहों का पलड़ा हल्का होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको जन्नत में दाखिल कर देंगे। उसके बाद उन जहन्नमियों को जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल किया जाएगा कि जिनके नामा अमाल में नेकियां कम थी लेकिन गुनाह ज्यादा थे, तो उनकी सजा पूरी होने के बाद उनको जहन्नम से निकाला जाएगा और आखिरकार उनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। और सबसे आखिर में ऐसे शख्स को निकाला जाएगा कि जिसके नामा अमाल में कोई भी नेकी मौजूद नहीं होगी, लेकिन उसने जिंदगी के अंदर सिर्फ एक दफा कलमा पढ़ा होगा। तो एक दफा कलमा पढ़ने की बरकत से, एक दफा कलमा तौहीद का इकरार करने से की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल कर देंगे। तो यहां पर भी आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस बात की गवाही दे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर जहन्नम की आग को हराम कर देंगे। तो यानी कलमा तौहीद की वजह से वो जहन्नम की आग से बच जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि कोई शख्स ये समझे कि कोई शख्स जो है सिर्फ ये कलमा पढ़ेगा तो वो जन्नत का मुस्तहिक बन जाएगा, चाहे वो नमाजें भी ना पढ़े, वो रोजे भी ना रखे, वो ज़कात भी ना दे, वो हज भी ना करे, वो अल्लाह के किसी और हुक्म की पाबंदी ना करे, बस कलमा एक दफा पढ़ ले तो वो जन्नत में चला जाएगा। ऐसा कहना या ऐसा समझना असल में दीन इस्लाम और शरीयत के बारे में कम फहमी की दलील है। क्योंकि जिस शख्स ने कुरान करीम को गहरी नजर से पढ़ा है और अहादीस मुबारका का गहरी नजर से मुताला किया है और शरीयत इस्लामिया के असरार व रुमूज से जो शख्स वाकिफ है या जो शख्स जो है कुरान करीम और अहादीस और सुन्नत मुबारका से अपना ताल्लुक मजबूत रखता है, वो ये बात समझ सकता है कि सिर्फ कलमा तौहीद से अपने आप को इस लायक समझ लेना कि आदमी से किसी और अमल का सवाल नहीं किया जाएगा, ये बात सरासर गलत फहमी पर मबनी है। बल्कि इसका मतलब यह है कि कलमा तौहीद पढ़ने के बाद इंसान शरीयत के जितने अहकाम हैं उनको मलहूज़े खातिर रखे। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई शख्स किसी इदारे के अंदर मुलाजिम हो जाता है, किसी इदारे के अंदर जो है जॉब हासिल कर लेता है, मुलाजमत हासिल करता है, तो उसके साथ वो इदारा एक वादा करता है, एक खास किस्म की उसके साथ जो है कमिटमेंट हो जाती है कि अब आप हमारे बाकायदा सर्वेंट हैं, अब आप हमारे बाकायदा जॉब होल्डर हैं।
तो जब वो उनके मुआहदे को साइन कर देता है तो उस इदारे के जितने कवानीन हैं, जितने उसूल व ज़वाबित हैं, उन तमाम कवायद व ज़वाबित की पाबंदी करना उस पर लाजिम हो जाता है। यानी वो उस इदारे के जो औकात हैं, जो टाइम टेबल है, उसकी पाबंदी करना, उस इदारे के जो दीगर मफादात हैं उनकी पाबंदी करना जरूरी होता है। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि बस मैं इस इदारे का जॉब होल्डर हो गया हूं, लेकिन अब मैं जो चाहे करूं, महीने के बाद मुझे तनख्वाह मिल जाएगी, महीने के बाद मेरी सैलरी मुझे मिल जाएगी। तो ये सरासर गलत फहमी होगी। कोई शख्स जो है किसी ऐसे शख्स को अपने पास मुलाजिम नहीं रखेगा। कोई इदारा, कोई डिपार्टमेंट और कोई फैक्ट्री, कोई कारखाना किसी ऐसे शख्स को मुलाजिम नहीं रखेगा कि जिसके साथ जो है सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो और वो शख्स समझे कि अब मैं आऊं या ना आऊं, काम करूं या ना करूं, महीने के बाद मुझे तनख्वाह मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल इसी तरह मिसाल के तौर पर एक बच्चा किसी स्कूल में दाखिला लेता है, तो स्कूल में उसका दाखिला हो गया, उसका एडमिशन हो गया, लेकिन एडमिशन लेना काफी नहीं है, बल्कि उस स्कूल के जो उसूल व ज़वाबित हैं, उस स्कूल के जो कवायद व ज़वाबित हैं, उनकी पाबंदी करना उस पर लाजिम हो जाता है कि उस स्कूल का यूनिफॉर्म क्या है, उस स्कूल की टाइम टेबल क्या है और उस स्कूल के अंदर जो है किस किस्म की किताबें पढ़ाई जाती हैं और कोर्स क्या है, निसाब क्या है, उन तमाम चीजों को फॉलो करना उस बच्चे के लिए जरूरी होगा। अगर कोई समझे कि बस एडमिशन हो गया है और अब मुझे यहाँ से पास होने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, चाहे मैं स्कूल जाऊं या ना जाऊं, और एग्जामिनेशन में, इम्तिहानों में मैं हिस्सा लूं या ना लूं, इम्तिहानों में मैं बैठूं या ना बैठूं, मुझे कामयाबी मिल जाएगी, तो यह नादानी होगी। बिल्कुल इसी तरह कोई शख्स कलमा पढ़ के ये समझे कि बस इस्लाम में दाखिला हो गया है, अब किसी किस्म की पूछगछ नहीं होगी, ये नादानी है। बल्कि मतलब यह है कि कलमा पढ़ लिया है और अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपना माबूद समझ लिया है, तो अब तुमने इस बात का इकरार कर लिया है कि मैं अपनी जिंदगी का कोई लम्हा, कोई वक्त अल्लाह की रजा के बगैर नहीं गुजारूंगा, अपना कोई काम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत के खिलाफ, मर्जी के खिलाफ नहीं करूंगा। तो उसके बारे में ये बशारत है कि जो शख्स कलमा तौहीद पढ़ ले, इस बात की गवाही दे कि मैं इस बात की गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह ताला उस पर जहन्नम की आग को हराम कर देते हैं। यानी मुकम्मल और कामिल बशारत उस इंसान के लिए है जो कलमा पढ़ने के बाद कलमे के तकाजे पर अमल करे, शरीयत के तकाजे पर अमल करे, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में बार बार फरमाया कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी करो, अल्लाह और उसके रसूल के कहने के मुताबिक जिंदगी गुजारो। तो जो शख्स कलमे के तकाजे पर चलेगा तो वो शख्स जो है इस बशारत का कामिल मुस्तहिक होगा। अलबत्ता जो शख्स जो है इस तकाजे पर पूरा अमल नहीं करेगा, कलमे के तकाजे पर, बल्कि जो है कभी कलमे के तकाजे पर अमल कर लिया और कभी जो है अल्लाह ताला की नाफरमानी की, कभी अल्लाह के नबी की नाफरमानी की, तो फिर जो है वो इस बशारत का कामिल मुस्तहिक नहीं होगा कि वो मुकम्मल तौर पर जहन्नम की आग से महफूज रहे, बल्कि उसके बारे में जो दूसरी आयात और अहादीस मौजूद हैं कि इन गुनाहों के करने की वजह से वो जहन्नम का मुस्तहिक बनेगा, लेकिन कलमा तौहीद की बरकत से अपने गुनाहों की सजा भुगतने के बाद आखिरकार जन्नत में चला जाएगा, क्योंकि तौहीद और रिसालत का इकरार जो है आखिरकार निजात का जामिन है, निजात के लिए आखिरकार उसके लिए कुंजी, निजात की कुंजी बन जाएगा। लेकिन अगर मुकम्मल तौर पर अमल करेगा तो मुकम्मल तौर पर इस बशारत का मुस्तहिक होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका की और शरीयत की सही समझ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।